بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. طارق عزیز اپنے طارق عزیز ٹاک شو کے ساتھ حاضر ہوں میں, اور میرے آج کے گیسٹ راجہ ارشد صاحب, جن کا تعلق راولپنڈی سے ہے, اور اگر میں ان کے پورٹ فولیو کو دیکھوں تو پولیٹیشین بھی ہیں, یوتھ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, ایکسپرٹ بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر سر. سر اتنی ساری چیزیں میں نے اس میں سے کچھ کٹ ڈاؤن اس لیے کر دیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بجائے لوگ میری آواز سننے کے, لوگ آپ کی بات سنیں اور ہم آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا سکیں. سر اپنا بریف سا انٹروڈکشن پہلے ہمیں کروائیے کائنڈلی. طارق صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے شو پہ انوائٹ کیا. میں ایک عام پاکستانی ہوں, اور جتنے مسائل زندگی میں ایک عام پاکستانی کو بھگتنے پڑتے ہیں وہ سارے کے سارے میں نے بھی فیس کیے ہیں, اور اب بھی کر رہا ہوں. بہت سے مسائل کا سامنا اب بھی ہے. سیاست جو ہے وہ بچپن سے شوق بھی تھا, اور کچھ اچھی بھی لگتی تھی, کچھ خواہش تھی. تو یہ ساری خواہشیں اور شوق مل کے ساری زندگی جو ہے وہ پالیٹکس میں گزری ہے. کبھی کسی پارٹی میں, کبھی کسی پارٹی میں, کبھی کسی فورم میں, کبھی اکیلے, کبھی محفل میں, کبھی تنہائی میں. تو یہ سلسلہ جاری رہا ہے. اب جو ہے وہ پاکستان میں جو مسائل کو دیکھا, جو پولیٹیکل پارٹیوں کی حالت دیکھی, تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی پارٹی جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں. پاک سماج پارٹی کی بنیاد رکھی, اور اس کے لیے اب ہم کام کر رہے ہیں. پاک سماج پارٹی کا ہلکا سا تعارف میں دے دیتا ہوں کہ ہم سماج میں سے, معاشرے میں سے جو بدعنوانی ہے, جو ہمارے ہاں برائیاں آ گئی ہیں ایز اے قوم, ہم کام چور بھی ہو گئے ہیں, ہم رشوت خور بھی ہو گئے ہیں, ہم بدعنوانی بھی کرتے ہیں, ہمارے ہاں بہت ساری بیماریاں ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا. ان سب سے اپنی قوم کو پاک کرنا ہے, ایک سپر قوم بنانا ہے, ایک بہترین قوم بنانا ہے جو دنیا بھر میں قابل احترام ہو, قابل ستائش ہو, اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکے. یہ مقصد ہے. جو ہمارے پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی خوشحالی, ان کی ترقی, پاکستان ایک خوبصورت پاکستان, ایک ترقی یافتہ پاکستان, ایک جدید ترین پاکستان, یہ ہم بنانا چاہتے ہیں. اور یہی خواہش ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو ہمیں ایک خوبصورت پاکستان نظر آئے, ہمیں خوشحالی سڑکوں گلیوں میں نظر آئے, ہمیں لوگ خوش نظر آئیں. اور یہ مایوس چہرے, یہ اداس شکلیں دیکھ دیکھ کے ہم تنگ آ چکے ہیں, اور ہمارا دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارے جو وہ ختم نہیں ہو رہی. اس کے لیے کوئی اقدامات, کوئی ایسی سبیل, کوئی ایسا طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ جو ہماری پولیٹیکل رفتار سے چل رہی. اگلے 70 سال بھی ترقی کی کوئی منزل طے نہیں کر سکتے ہم, ہمارا شمار کبھی بھی ترقی. تو یہ ساری چیزیں اور یہ صورتیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ دوستوں نے مل کے کہ ہم اپنی پارٹی کا آغاز کریں اور اپنی جدوجہد جو ہے وہ کریں. سیاست میں جب تک ہم خود نہیں آئیں گے, ہم سے جو نکمے بندے ہیں, جو ہم سے کم تر لے ہیں, وہ ہم پہ حکومت کریں گے. تو اس سے بچنے کے لیے کہ ہم کس طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, ہم نے یہ اس سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھی. سر یہی وجہ تھی کہ آج کا جو میں نے ٹاپک رکھا ہے وہ میں نے یوتھ اینڈ پولیٹکس رکھا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. سر اسی وجہ سے میں نے جو آج کا ٹاپک ہے وہ یوتھ اینڈ پولیٹکس رکھا ہے. جی صاحب, ہم بات کر رہے تھے
کہ پالیٹکس اور یوتھ، کیونکہ آپ جو کہ آپ نے اپنی پارٹی بنائی ہے، پارٹی اسی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو مقصد آپ لے کے چل رہے ہیں اس میں اپنے ساتھ یوتھ کو کہاں پاتے ہیں، یوتھ کے لیے اس میں کیا کہاں جگہ ہے، اور یوتھ آپ کے لیے کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ کیونکہ عام طور پہ تاثر یہی آتا ہے کہ پالیٹکس تو اچھی چیز نہیں ہے. جی صاحب بہت سن اچھا پا رہے ہیں؟ آپ نے سوال کیا. بیسیکلی آپ نے 2 سوال کیے ہیں. جی سب سے پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کے پہلے حصے کی طرف آتا ہوں کہ یوتھ کیا کرتی ہے. دنیا بھر میں جہاں بھی کچھ کرتی ہے وہ یوتھ ہی کرتی ہے، اور صحیح. پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس میں یوتھ جو ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. دنیا بھر کے مقابلے میں ہمارے پاس یوتھ کی زیادہ تعداد موجود ہے، اور ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. یہ ہمارے سیاستدانوں کی اور حکمرانوں کی نالائکی ہے کہ وہ اس یوتھ کو استعمال نہیں کر پا رہے. ہمارے پاس اتنی زیادہ مین پاور ہے، ہم اس کا کوئی استعمال نہیں کر رہے. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے جو معاشرہ ہے اس کو چینلائز نہیں کیا، کیونکہ جب تک آپ کے پاس یوتھ تو ہے، اس میں پروفیشنل کتنے ہیں؟ ان کی تعداد بہت کم ہے. ہمارے ہاں نان پروفیشنل انسکلڈ لیبر موجود ہے، اور انسکلڈ لیبر جو ہے وہ اب دنیا میں نہیں چلتی. اب جدید مشینیں آ گئی ہیں، ہر چیز جدید ہو گئی ہے، اور اس کے لیے ٹرینڈ لوگوں کی ضرورت ہے، پروفیشنل جو ہیں ان کی ضرورت ہے، اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے. لیکن ہمارے فارچونیٹلی لوگ جو ہیں وہ تجربہ کار نہیں ہیں. انہوں نے کہیں کسی ادارے سے، کسی انسٹیٹیوٹ سے سیکھا ہوا نہیں ہے. آپ اپنا مکینک اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہیں سے ٹرینڈ نہیں ہے. وہ صرف اپنے استاد سے سیکھ کے تو وہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے پروفیشنل ٹریننگ حاصل نہیں کی، اس لیے وہ سب کچھ نہیں جانتا. وہ ہر چیز کا ماہر نہیں ہے. تو کچھ چیزیں وہ صحیح کرتا ہے، کچھ خراب کرتا ہے. تو ایک انٹرینڈ آدمی جس طرح کی پرفارمنس دے گا اس طرح کی پرفارمنس ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے. باقی شعبوں میں بھی آپ چلے جائیں تو لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں. جو میڈیکل سٹور پہ آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو سیل مین جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں ملتا. وہ عام آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا کتنی دوائی کیسے دینی ہے، ایک پورا ایک کام ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ہم ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. یوتھ کو ہم ٹریننگ دے کر ان کو اچھی جاب دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ پاکستان کے اندر اچھی جابز کرے، بہترین سروسز دے، ہائیلی اسکلڈ ہو، اور دنیا بھر میں ہم اپنی یوتھ کو بھیج سکیں، تاکہ ہمارے پاس جو زر مبادلہ ہے وہ بھی آئے اور لوگ خوشحال ہوں. جب تک یوتھ کی ٹریننگ نہیں ہوگی، یوتھ کا کوئی نظام نہیں بنے گا، کوئی ایسے ادارے نہیں بنیں گے جو ہماری یوتھ کو آج کی ضرورت کے مطابق اور آنے والے 10 سالوں کی ضرورت کے مطابق ٹرین نہ کر سکیں. تو اگر ایسے ادارے بن جائیں گے تو یوتھ یوٹیلائز ہو جائے گی اور یوتھ سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. اچھا ایک چیز میں آپ نے دوسرا سوال جی پلیز یاد کرا دیں کہ آپ کیا کیا تھا. جی دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ پولیٹکس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. بیشتر جو موسٹلی جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی کیا کہتے ہیں انکریج نہیں کرتے کہ وہ پولیٹکس میں آئیں. ان پیرنٹس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، بڑا اچھا سوال ہے. اس میں صرف یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ کون یہ بات کر رہا ہے. صحیح. اس میں آپ ہماری عوام یہ بات نہیں کر رہی، یہ کر رہے ہیں بددیانت سیاستدان جو خود کرپٹ ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتی ایماندار آدمی عوام میں سے اٹھ کے آ جائے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سیاست ہے یہ ہمارے گھر کی باندھی رہے، اور اس سے ہم جو ہے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں. یہ خود ایسے ہی کام خود سیاست کرتے ہیں اور عوام کو کہتے ہیں کہ یہ گندی چیز ہے. یہ پیغمبرانہ کام ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سیاست کی ہے، حکمرانی قائم کی ہے اور مسائل کو حل کیا ہے. آج جو مدینے کی ریاست کی باتیں ہو رہی ہیں وہ
ठीक नहीं है, वो खुद से उनके अंदर ये अहलियत नहीं है कि अवाम को कोई सहूलत दे सके, लिहाजा वो मदीने की रियासत की बातें करते हैं ताकि मजहब को एक्सप्लॉइट किया जाए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये इनको जेब नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें आगे हम बात करते हैं उसके लिए नई लेके जी। नौजवान क़यादत आएगी, नए लोग होंगे जो गैर सियासी हैं, उनको लेके आएंगे, उनको सियासत सिखाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे और वो पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि तब हम इन लोगों को शिकस्त दे सकेंगे जो पिछले 70 साल से पाकिस्तान को गिद्धों की तरह नोच रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, तो मीडिया अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है? आपकी आवाज कम हो गई है। मैंने कहा जी, मीडिया जो उनसे है, आप मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, तो इसमें भी मैं आपको ओपिनियन चाहूंगा कि मीडिया जो इस वक्त अपना रोल प्ले कर रहा है, क्या वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मुझे क्वेश्चन आपका 50% समझ आया है कि शायद आपने ये पूछा है कि मीडिया अपना पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है या नहीं। मीडिया जो है वो पाकिस्तानी समाज का हिस्सा है। मीडिया के जितने कर्ता धर्ता हैं, एंकर्स हैं, मालिक हैं और वर्कर हैं, ये 3 ग्रुप हैं जो मीडिया को बनाते हैं। इन तीनों की जो रोल है, जाहिर है जो वर्कर क्लास है उसका रोल तो बहुत पॉजिटिव है, वो हमें तस्वीरें भी दिखा रहा है, वो हमें लम्हा बलम्हा जो दे रहा है, रिपोर्टिंग भी कर रहा है, उनसे तो हमें कोई शिकायत नहीं है। शिकायत जहाँ पे आती है वो एंकर पर्सन हैं और मीडिया हाउसेस के मालकान हैं, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद सारे के सारे गलत नहीं हैं, सारे के सारे ठीक भी नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि पैमरा की तरफ से सख्त कवानीन लिए गए हैं और जब कुछ लोगों की बात नहीं मानी जाती तो वो फिर टाइट करते हैं उनको फिर मजबूरन फोर्स किया जाता है कि वो ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करें जो हमारी ज़रूरत नहीं है, या इन जो अवाम है, पब्लिक है, उसके जहन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की कुछ काम होते हैं। लेकिन ये हिस्सा भी इसको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बेहतर बनाने की ज़रूरत है वक्त के साथ साथ, क्योंकि हमारा समाज ओवरऑल समाज जो है वो गलाजतों से भर गया है। तो यही आदात जो हैं वो हमारे मीडिया में भी आ गए हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी आ गए हैं, हमारे कारोबार में भी आ गए हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी आ गए हैं। तो हम जहाँ से हमें फायदा होता है हम पूरी फायदे के लिए काम करते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है तारिक साहब कि जब तक हमारी अवाम को ये ट्रस्ट नहीं होता, ये यकीन नहीं होता कि पाकिस्तान के इदारे एक मजलूम के साथ खड़े हैं, तब तक आप ईमानदारी का तकाजा नहीं कर सकते। आज अगर मैं बीमार हो जाता हूं तो पाकिस्तान के इदारे मुझे सेहतमंद नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है कि ये मैं मर जाऊंगा लेकिन मुझे गोली दवाई नहीं मिलेगी, मेरिट पे नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं बेरोजगार हो जाता हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं कोई दोस्त तो शायद मदद कर दे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत के इदारे जो हैं वो मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। तो ये अवाम का एतमाद इदारों के ऊपर से उठ चुका है और उसका रिजल्ट ये है कि हर बंदा इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर जो इदारे बने हुए हैं वो इदारे भी अपनी सेफ्टी के लिए थोड़े से लालची हो गए हैं, ठीक है। वो पैसों की तरफ देखते हैं, हमें मजबूर कर दिया गया है, हमारी आदत बना दी गई है कि हम पैसों की तरफ देखें, हम अपने आप को करने के लिए पैसे की तरफ देखते हैं। तो ये मीडिया की भी प्रॉब्लम है, ये ओवरऑल बहसीयत कौम हमें इस काबिल बनना है कि हमारे इदारे हर जरूरत के साथ खड़े हो। सही। अब जब ये बताएं, बीइंग अ मीडिया एक्सपर्ट, इस वक्त सोशल मीडिया जिस साइड पे जा रहा है, कि आप यूथ के हवाले से सोशल मीडिया का कोई जिक्र कर रहे हैं और यूथ ही वो कर रहे हैं। आपने यूथ को यही सिखाया है कि चैटिंग करनी है तो वो चैटिंग कर रहे हैं। आपने कौन सा यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है जो आप अपने मैट्रिक का सिलेबस उठा के देख रहे हैं, आप कुछ भी नहीं सिखा रहे उनको।
सर लेकिन मैं अगर इसमें एक चीज आपने कहूंगा, यूथ की ट्रेनिंग की देखें होती इसमें एक चीज तो आज मैं यही कहूंगा। यूथ आपको पैसे कमा के देती, देखिए सर, आप एक टीचर भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स पैदा करते हैं। आप एमबीए की डिग्री देते हैं और वो बंदा बिजनेस के बारे में कुछ नहीं कर सकता, वो नौकरी ढूंढ रहा होता है। लेकिन सर हाँ, आप टीचर भी हैं, ठीक है, टोटल लेकिन कोलैप्स है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है। इसमें बहुत मेहनत की, बहुत अपग्रेडेशन की जरूरत है। ये इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक होना चाहिए। इसके ऊपर जितना भी काम अभी वाला है आपको सीखना है। हम साल पीछे हैं दुनिया से। हमें दुनिया के मुकाबले में जाने के लिए अपने सिलेबस को, अपने असातिज़ा को और अपने जो टारगेट्स हैं उनको चेंज करना होगा। हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम आईटी में एक्सेल करें, ठीक है। सर लेकिन बात ये है, इंडिया में आईटी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकता है तो पाकिस्तान में भी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमने उनको मुनासिब ही नहीं समझा कि हम उनको अट्रैक्ट करें। जी जी, चीजें खराब हैं तकरीबन तमाम फील्ड में। आप ज़राअत में चले जाएं तो हमारी ज़राअत पीछे जा रही है। हम सनत में जाएं तो सनतें बंद हो चुकी हैं, स्टील मिल बंद होने के करीब है, लोगों को निकाला जा रहा है। PIA का हाल आपके सामने है। आप महकमा सेहत को देख लें तो आप एक अस्पताल का चक्कर लगा लें तो आपको समझ आ जाएगी कि हम कहाँ खड़े हैं। आपको लगेगा पूरा पाकिस्तान शायद बीमार है। और आप अपने बाजारों को देख लें, वहाँ पे रश और वहाँ पे गंदगी और वहाँ पे जो दकम तेल है, कोई नज़्मो ज़ब्त नहीं है हमारे पास। एजुकेशन का निज़ाम ये है कि हम कोई भी अच्छा साइंसदान नहीं पैदा कर पा रहे जो इंटरनेशनली जो है वो कुछ काम कर सके, या हमारे जो नौजवान हैं वो अपने आप को मनवा सकें आईटी के फील्ड में। हमें ज़रूरत है एक डिजिटल पाकिस्तान की, एक ऐसे पाकिस्तान की ज़रूरत है जिसमें हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो और डिजिटल हो। हम ये चाहते हैं डिजिटल में तो हम आगे हैं। जो हमारी पार्टी है वो एक ऐसा शनाख्ती कार्ड बनाएगा। शनाख्ती कार्ड आ गया है। मैं आपसे 2-3 मिनट लूंगा, मैं आपकी बात कंप्लीट कर, मैं आपको बात करने का पूरा मौका दूंगा। हम डिजिटल पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे। हम जो बिल्कुल करेंगे। सिर्फ एक चीज कार्ड बनाएंगे बंदे का, उसके अंदर उसकी तमाम एजुकेशनल डिटेल लिखी होगी, उसके अंदर उसकी तमाम बीमारियां लिखी होंगी, उसको हिफाजती टीके लगे हैं या नहीं लगे वो लिखे होंगे, उसने कितने ग्रेड लिए हैं कौन सी क्लास में वो सारे उसमें लिखे होंगे, उसने कितना क्राइम किया है वो लिखा होगा, उसके बैंक में कितने पैसे हैं ये लिखे होंगे, उसने कितने चालान कराए हैं ये लिखा होगा। तो हम यहाँ से अपनी इब्तिदा करेंगे और स्टेट के साथ कोई भी शहरी जो है वो इंटरएक्ट होगा 100%। स्टेट को पता होगा कि कौन से बंदे के क्या हालात हैं, तभी वो उनकी मदद कर सकेगी, तभी वो उनकी एजुकेशन को बेहतर कर। जब तक आपके पास सही डाटा ही नहीं है तो आप क्या प्लान करेंगे? सही डाटा का होना इंतहाई जरूरी है। जब आपके डाटा आ जाएगा तो फिर आप प्लानिंग कर सकते हैं। अभी तक तो हमारे हुक्मरानों को ये नहीं पता कि कितने लोग पाकिस्तान में फतेह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने लोगों के जो बहुत ज्यादा लोग उनमें जो मेरे जैसे लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं। हुकूमत को नहीं पता कि उनके पास स्किल क्या है, हुकूमत को नहीं पता कि घर कितने लोगों के पास है, हुकूमत को नहीं पता कि बीमारियां किन किन लोगों को हैं। तो ये डाटा जब ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ये बात रियल फॉर्म में गवर्नमेंट के पास नहीं आता, आप ना कोई प्लानिंग कर सकते हैं और ना कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा टॉपिक एक और आपका बड़ा अच्छा सेगमेंट है, आपको होस्टिंग भी आती है। तो ये होस्टिंग का शौक कहाँ से आपको आया, कहाँ से पैदा हुआ ये शौक होस्ट करने का? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। होस्टिंग का शौक नहीं था मुझे ये रेहान अल्लाह वाला साहब ने कहा कि जनाब आप होस्टिंग करें, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी ये कर लेता हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी खूबी है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इतने सारे लोग ट्रेन कर दिए हैं और मैं समझ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक समंदर तैयार हो रहा है पाकिस्तान में जो लोगों से बात करने की सलाहियत रखता है, और ये बड़ा टैलेंट है। और ये लोग जो हैं ना सिर्फ बात करेंगे, बात को फैला रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं और इल्म को आगे ला रहे हैं। सबसे अहम फायदा जो इसका हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान का टैलेंट है वो सामने आ रहा है और ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो शायद कभी मीडिया पे आ नहीं सकते थे, सोच भी सकते, कैमरे को फेस करना बड़ा मुश्किल होता था।
सवाल ही पैदा नहीं। मीडिया की मर्जी है कि वो अपनी मर्जी से लेके आता है, लेकिन सही है। ये रेहान अल्लाह ताला उनको सुखी रखे आमीन, और आमीन। उनकी सलाहियतों में इजाफा करे, अच्छे से दे उनको। पाकिस्तान के साथ बहुत मुखलिस आदमी हैं और बहुत अच्छा काम बेशक। कर रहे हैं। मैं उनका ममनून भी हूँ और उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल, ये इसमें कोई शक हमारे नहीं है। माशरे को सिखाया और डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब एग्जैक्टली, है ये वो उन्हीं का दिया शुरू हुआ वहीं से हुआ है, ये और शुरू वहीं मैं से हुआ है। समझता ये हूँ कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेहान बहुत काम किया। हमें जितना भी मुमकिन हो हम उनको एक उस्ताद का दर्जा देते हैं और वो आधे पाकिस्तान के उस्ताद हैं और इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ जो है ये पूरा पाकिस्तान उनका शागिर्द होगा और हमें यकीन है कि वो पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान की खुशहाली में और पाकिस्तान को जदीद बनाने में जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं वो एफर्ट्स जो हैं वो रंग लाएंगे। बेशक, इंशाल्लाह ताला। सर, लास्ट में यूथ के लिए आप क्या कहेंगे? मेरे एक उस्ताद हैं जी, उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक बात सिखाई थी कि बेटा काम करने के बाद चेक करें कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये इतनी बड़ी बात है कि अगर आप इस पे अमल कर लें तो आपकी बेइज्जती नहीं होती। आप सफाई करने के बाद खुद चेक करें कि यार ये सफाई हो गई है, आपको खुद नजर आ जाएगा कि इसमें कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ खामी है। आप कोई भी काम करें, आप अगर काम करने के बाद चेक कर लें कि ये काम सही हुआ है या नहीं, अपने बास बन जाएं, अपने खुद तनकीदी नजर से देखें कि ये आपने सफाई नहीं की है, आपके किसी मुलाजिम ने सफाई की है, आपने उसको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। आप अपने बास खुद बन जाएं तो आप के काम में परफेक्शन आ जाएगी। एक तो ये बात है, खूबसूरत बात जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप में जो भी सलाहियत है, आप पाकिस्तान के लिए उस सलाहियत का इजहार कीजिए। आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, आप मजदूर हैं, आप किसान हैं, आप क्लर्क हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप उस्ताद हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, आप पाकिस्तान के लिए अपनी जिंदगी चंद मिनट, चंद घंटे, चंद दिन, जो आपकी कैपेसिटी है वो उसके लिए अच्छा सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं और जो आप कर सकते हैं, जो आपके अंदर बात आती है, आप वो जरूर कीजिए। आप 2 दरख्त लगा सकते हैं, जरूर लगाइए। आप अपने घरजी लगा सकते हैं, जरूर लगाइए। आप गली में से कोई पत्थर हटा सकते हैं, जरूर हटाइए। आप कोई अपने मोहल्ले की गली पक्की कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं। आप कब्रिस्तान को बेहतर बना सकते हैं। आप कुछ भी करना चाहें, आप सोचिए कि आपने क्या करना है, इस पाकिस्तान के लिए आपने क्या करना है। हम अपनी रोजी रोटी के लिए जो कुछ करते हैं वो तो करते ही हैं। अगर हम अब महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटे हम निकाल लें कि आज हमने सोशल वर्क करना है, तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। हमारे शहर साफ हो जाएंगे, गलियां बेहतर हो जाएंगी और हमारी आवाम जो है वो बेहतर पाकिस्तान को देख सकेगी इंशाल्लाह ताला। सर, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त हमें दिया। वंस अगेन बहुत मेहरबानी, नवाजिश आप के टाइम का भी और आपकी इनविटेशन का भी। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सर। जी व्यूअर्स, आपने राय साहब की बात सुनी। राय साहब ने बड़ी प्यारी बातें की हैं और एक टीचर होने के नाते, मीडिया पर्सन होने के नाते और स्पेशली एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते और ख़ास तौर पे एक पॉलिटिशियन के हवाले से, तो आपने सारी बातें सुनी। फैसला आपने करना है